Good morning, student. Yeah, good morning, student. Are you listening me? Hello, someone please reply. Are you getting my voice or not? Yes, sir. ओके तो बच्चों बोल दिया करो भाई। ठीक है, चलो कल मैंने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन थोड़ा सा बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है। यस सर, स्टार्ट किया था। अच्छा, स्टार्ट किया था, अचानक मीटिंग आ गई थी। ठीक 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 है। तो अब देखो क्या है कि जब क्या है कि आजकल जितने भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई भी कंप्यूटेशनल प्रोसेस है, तो उसमें होता क्या है कि एवरीवन ट्राई टू डू द थिंग्स फास्ट। ओके, तो अगर हमें फास्ट चीजें करना है तो दो चीजें हैं। ठीक, दो चीजें क्या है कि फर्स्टली यू मेक द योर कंप्यूटर सिस्टम सो स्ट्रॉन्ग तो इट कैन डू द वर्क फास्ट। ओके, क्लियर? फर्स्ट थिंग। सेकंड वन इज दैट कि इफ but it cost a lot. Second one is that if you want to compute anything fast, do it parallelly, break it, and do all the breakups in parallel or concurrent manner or simultaneous. Okay, so there are two things. तो अगर आपके पास यूनिट प्रोसेसर है और जैसे अगर आपको क्या करना है, काम कराना है कोई भी घर का, तो एक बहुत मोटा तगड़ा पहलवान टाइप का आदमी लाओ और उसके पास मतलब वो बहुत ही सुपरमैन टाइप का है। ठीक, तो वो काम चुटकियों में कर देगा, या उसी काम को आप क्या कर सकते हो, तीन चार आदमी लोग मिल करके काम करेंगे। ठीक, क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। ठीक, तो होता क्या है कि नाउ इट इज एवरी एट अ टाइम not a single process is executing, more than one process is executing at the same time. Okay, this is called multi-processing system. So in multi-processing system, there are several processes working on a particular module, or you can say particular instruction or process. Okay, or particular application or particular problem. Okay, so if there are multiple processes are there, so there are two things. First thing is that if they are cooperating process, means they are sharing variables with other process, then what and if they are sharing the variable or sharing the same memory location, and if their all operations are read operation, then there is no problem. But the problem arises where there are read operation and even a single write operations are there, then there is a problem. You have to synchronize all. Okay, so for that the area where a processor can change a processor, not processor, a process can change the value of any other process, that area is called critical section. Okay, so what happened, there are two things. Okay, first thing is that you draw a mechanism just like semaphore, uh, just like monitor or critical region for do this thing that you have to manage all these things. Means one if one process is holding the critical section, other process must have to wait. After executing the critical section, it have to give the signal that now I make free the critical section. Now you can enter into the critical section. Okay, clear है? सेकेंड वन इज दैट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब है क्या कि ऐसा नहीं है कि मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है कि इफ वन प्रोसेस
wants to communicate with other process, so the way of mechanism by which a process communicate with other is called inter-process communication. Okay, so inter-process communication, what it does, it is the mechanism provided by the operators that allow processes to communicate with each other. The communication would involve the process letting another process know that some event has occurred or transferring data from one process to another. For example, if there are two processes, okay, not two processes, there are multiple processes are there, and in one process there is a variable which is shared by all these processes. So if they are reading, then no problem. But if someone writes on that particular particular location of that shared variable, so or that process must communicate to other process that, yeah, initially the value was this, now I have changed this value to this. Okay, so it must have communicate. So this is called write update protocol. Write update protocol means if someone is writing, then it must update to all. Okay, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, इसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इफ वन प्रोसेस वांट्स टू कम्युनिकेट विद अदर, तो द मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो व्हाई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इट स्पीड अप मॉड्यूलरिटी, मींस क्या है कि इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन, ओके, there are uh, there are different modules are there, and if there is no communication, so definitely it must have to interact by going to that particular module. Okay, तो अगर क्या है कि वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में जो प्रोसेस है वो सबको अपडेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस प्रोसेस को वहां तक आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इंक्रीज computational privilege separation, convenience, self-operating system to communicate with each other and synchronize their action. So these are the uh, some requirement you can say, and that's why inter-process communication is required. So now come to different model of inter-process communication. There are two models working in inter-process communication. First one is the shared memory model, and second one is the message passing model. Okay, तो होता क्या है कि all process are communicating through RAM. क्यों थ्रू रैम होता है? बिकॉज एवरी execution which is going on, okay, at that particular moment, वो क्या होते हैं, वही ऑपरेशन होते हैं जो रैम में स्टोर, ठीक। तो होता क्या है कि जो मॉडल्स बनाए गए हैं फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट्स डिपेंड अपॉन द मेमोरी मॉडल, दैट डिपेंड अपॉन द मेमोरी मॉडल। सो there are two type of inter-process communication model. First one is the shared memory model, and second one is the message passing model. Shared memory model means if all process are sharing the same memory. Okay, if all the process sharing the same memory means that there are multiple process, but there is single RAM. Okay, or you can say all process are sharing the same location. Then this is called shared memory model. ये देखो आप यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फिगर, मीन्स प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, डी, ई एंड ऑल आर sharing the same memory. Okay, means all process have same memory. Okay, this is also called uniform memory accessing. Means that कि अगर आप क्या कर रहे हो कि आपको सिर्फ एक क्लास में, सेमिनार हॉल में सारे बच्चों को जाना है, तो मीन्स क्या है कि उन लोगों का क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेसिंग है, ठीक। बट अगर हम कह दें कि किसी को एफ ब्लॉक जाना है, किसी को ए ब्लॉक जाना है, या किसी को बी ब्लॉक जाना है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर है, ठीक है। तो शेयर्ड मेमोरी मीन्स, शेयर्ड मेमोरी मॉडल मीन्स ऑल प्रोसेस आर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन, देन इट इज कॉल्ड शेयर्ड मेमोरी. And message passing model, or you can say distributed memory model, you can say, means you are seeing here that each processes have same memory. It have its own memory, not same memory. All process have
all process have its own memory, then it is called distributed, means the RAM is distributed to all the process. Okay, clear? So both have some advantage, both have some disadvantage. Okay, so one by one I'm going to cover. So you are clear now that there are two memory, there are two IPC model. First one is shared memory model, in which all processes are sharing the same memory. Message passing model, or it is called distributed model. This is the distributed memory model. In this, all processes have its own memory. Okay, now come to shared memory model. So here in this figure, you are easily understand that process 1 and process 2 is sharing the same memory. Okay, or common memory. They have a common memory. This is called shared memory. Okay, so it means that in shared memory it is easily to implement because uh, all process have the same address. सबको मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, ठीक? तो you have to generate only one address. ठीक है, क्लियर है? और अगर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड में है तो क्या होगा कि सबको अलग अलग एड्रेस जनरेट करने पड़ेंगे, बिकॉज जो भी मेमोरी है वो अलग अलग है, तो उनका हर एक मेमोरी का अलग अपना एड्रेस. So in shared memory model, shared memory is memory shared between two or more processes and area of memory shared among the process that wish to communicate. तो अब देखो क्या है, if process 1 want to communicate with process 2, then it must be via shared memory. Firstly, it will send his data to shared memory, to this memory, and through this memory that data will be sent to process 2. Means if both process 1 and process 2 uh, want to communicate with each other, that must be via shared memory. Okay, that must be from memory. Okay. The communication is under the control of the user process, not the single operating system, not the operating system. ठीक है, तो जो यूजर्स प्रोसेस होते हैं, जो ये मैकेनिज्म है, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द अंडर द कंट्रोल ऑफ यूजर प्रोसेस, नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो इट डिपेंड अपॉन द यूजर कि वो किस हिसाब से क्या करता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो है. तो क्या होता है कि वंस कम्युनिकेशन इज इस्टेब्लिश, तो देयर इज नो कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो क्या होगा, प्रोसेस 1 क्या करेगा, प्रोसेस आईडी देगा, ठीक है, किसको, शेयर्ड मेमोरी को. शेयर्ड, इट इज द वर्क ऑफ इट इज द वर्क ऑफ द रैम टू send that particular information to that process ID. Clear है? Major issue to provide mechanism that will allow the user process to synchronize their action when they access shared memory. तो सिंपल क्या है कि इसमें there is not too much synchronization is required because there is a uniform accessing. Okay, if there is a non-uniform accessing, then more synchronization is required. Okay, means क्या है कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, किस, तो हमें उसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस देना पड़ेगा. क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड shared memory model. Now come to advantage of shared memory model. So what is the advantage of shared memory model? That it is memory communication is faster on the shared memory model as compared to message passing on the same machine. अभी देखो कहोगे कि मतलब कैसे पॉसिबल मतलब है, तो होता क्या है कि जो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी या मैसेज पासिंग मॉडल है, इट बिकम लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. ओके, और थोड़ा सा क्या होता है कि उसमें जो कोड रन करने का जो टाइम होता है, बिकॉज क्या है ना कि अगर देखो हमें मालूम है कि हमें एक ही रूम में जाना है सभी को, ठीक, देन इट्स ओके, आप बिना कुछ देखे आप वहां पहुंच जाओगे. लेकिन इफ यू यू डोंट नो कि हमें मतलब कहाँ पे जाना है, ये अचानक ही बताया गया कि आपको यहाँ पे जाना, तो यू हैव टू टेक टाइम फॉर सर्चिंग. ओके, तो सेम द थिंग्स अप्लाई है. ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा लिटिल अगर देखा जाए, तो अगर क्या है कि इफ देयर आर लिटिल बिट प्रोसेस ना, बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं है, तो शेयर्ड मेमोरी इज वेरी मच फास्टर. डिसएडवांटेज क्या है, all the process that uses shared memory and need to make sure that they are not writing the same. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है. मींस क्या है कि आपको यहाँ पे WAR
या RAW, ठीक, WAR रीड राइट आफ्टर रीड या रीड आफ्टर राइट, या WAW, ये थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक, राइट आफ्टर राइट। कि मतलब अगर क्या है कि इफ बिकॉज all process are sharing the same memory location and if all are reading then no problem, then no problem, but if one single process is going to write then definitely you have to take some control, okay, because जैसे क्या है process 2 wants to write here because in this memory location and the same memory location is accessed by process 1, okay, so it means that ki if initially it is written 5 here and process 2 change it 6 but process 1 wants 5, okay, so what will happen, तो क्या होगा तो क्या है कि अगर क्या है कि कोई राइटिंग प्रोसेस हो रही है तो सारे प्रोसेस क्या हो कि मतलब मस्ट अवेयर अबाउट दैट कि समवन इज गोइंग टू राइट, तो उसी हिसाब से क्या होगा मैकेनिज्म थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो वही है हमने बताया रीड आफ्टर राइट या राइट आफ्टर राइट या राइट आफ्टर रीड, तो रीड के बाद राइट करना है, ठीक है, कि रीड पहले करना है देन राइट करना है, और अगर देयर आर मल्टीपल राइट्स, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, सिंगल SR SW सिंगल राइट और सिंगल रीड है, ठीक, SRMW सिंगल रीड मल्टीपल राइट है, या MRSW मल्टीपल रीड सिंगल राइट है, या MW, ठीक है, मतलब वो चीज नहीं है, ठीक है, मैं रीड और राइट के बीच में नहीं है। तो क्या है कि इफ ऑल आर वांटेड टू राइट, अगर क्या है कि अगर सारे के सारे रीड कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और अगर कोई भी एक ऑपरेशन राइट का है देन वहां पे प्रॉब्लम आएगी, यू मस्ट हैव टू सिंक्रोनाइज। नाउ कम टू मैसेज पासिंग मॉडल। मैसेज पासिंग मॉडल में क्या है कि ऑल प्रोसेस ऑल आप यहाँ पे देख रहे होगे ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सारे प्रोसेस के अपनी मेमोरी लोकेशन, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी में क्या है कि सारे प्रोसेस एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं कुछ इस तरह से डिजाइन कर देता हूँ प्रोसेस 1, और यहाँ पे क्या है एक मेमोरी है, यहाँ पे भी एक अपनी मेमोरी है, यहाँ पे एक प्रोसेस है इसकी अपनी मेमोरी है, ठीक है, तो इफ देयर आर n प्रोसेस, okay, yeah, then there are n processor, which means that each process have its own memory, ठीक, क्लियर है, तो वो क्या कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, distributed memory model, not distributed shared memory, distributed memory model, and it is also called message passing model, या sometimes it is also called non uniform accessing, NUMA, ठीक है, शेयर्ड मेमोरी क्या कहलाती है, UMA, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेसिंग, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, या मैसेज पासिंग क्या कहलाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो अब देखो क्या है जो मैसेज पासिंग है इसमें देखो क्या है कि ईच प्रोसेस हैव इट्स ओन मेमोरी, सबके पास अपनी अपनी मेमोरी है, तो इसका एक बड़ा जो सब डेफिनेटली क्या है कि चीजें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी लेकिन इजी हो जाएंगी, पैरेलल में सारी चीजें होंगी, बिकॉज होता क्या है ना कि देखो अभी शेयर्ड मेमोरी में क्या है कि इफ प्रोसेस 2 वांट्स टू एक्सेस दिस शेयर्ड मेमोरी, इट okay, but now it is occupied by process 1, it means that the process 2 must have to wait for uh, must have to wait, okay, until unless process 1 make it free, तो जब तक प्रोसेस 1 इसको फ्री नहीं कर देगा प्रोसेस 2 मस्ट हैव टू वेट। लेकिन यहाँ पे क्या है इस वाले मॉडल में क्या है कि ईच प्रोसेस हैव इट्स ओन मेमोरी एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कर्नल, तो क्या होगा कि कर्नल देखो अब यहाँ पे देखो क्या है एक चीज ये समझ ये इस मॉडल में कि
ये कर्नल से कनेक्टेड है और कर्नल इसको कंट्रोल करता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। शेयर्ड मेमोरी में इतनी कंट्रोलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज सारे के सारे बस एक कंट्रोलिंग करनी पड़ती है कि इफ one process is accessing the memory, no other process can enter in or access that particular memory. उस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाएगा if a process is accessed. लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कंट्रोल हमें करने पड़ेंगे। क्या सा कंट्रोल? पहला तो ये चीज है कि हर एक मेमोरी के लिए ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एड्रेस रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखो क्या है कि और इसमें क्या होगा, जो आईपीसी का वर्क है वो बहुत ही ज्यादा होता है, एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का। अच्छा, एक चीज शेयर्ड मेमोरी में थोड़ी सी ये है कि इफ देयर इज ए प्रॉब्लम इन शेयर्ड मेमोरी, देयर इज ए प्रॉब्लम इन मेमोरी, तो क्या हो, ऑल प्रोसेस और नॉट एबल टू वर्क। ठीक है, वो वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर इस शेयर्ड इसी मेमोरी में प्रॉब्लम है। ठीक, क्यों आ जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऑल प्रोसेस आर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन एंड इफ देयर इज ए प्रॉब्लम इन दिस मेमोरी, नो वन इज एबल टू वर्क और परफॉर्म। लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक ही मेमोरी क्या है, कुछ गड़बड़ होती है, ऑल अदर प्रोसेस कैन वर्क। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें साइमल्टेनियसली सारे की सारी एक्सेसिंग होगी। इसमें क्या होगा, वन बाय वन होगा। ठीक, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो क्या है, मैसेज पासिंग मॉडल में, मैसेज पासिंग मॉडल में क्या है कि अब अगर क्या है इसमें क्या होगा कि दो चीजें होंगी, दो ऑपरेशन होंगे, एक सेंड का और एक रिसीव का। क्योंकि क्या है कि इसमें क्या है कि जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेमोरी ऑफ अदर प्रोसेस नहीं है। ठीक है, a process is not directly connected to the memory of other process. शेयर्ड मेमोरी क्या था कि सारे के सारे प्रोसेस एक मेमोरी से कनेक्टेड थे, इसमें क्या है, नहीं। तो क्या होगा, हर एक मेमोरी का एड्रेस होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि इफ वन प्रोसेस want to communicate with other process, तो वो क्या करेगा, it will send a message। ठीक है, कि हमें डाटा रीड करना है या राइट करना है या वट एवर, एंड इट विल रिसीव। ओके, तो अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी काफी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी? अ, जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक जो प्रोसेस है, जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक, प्रोसेस ए, प्रोसेस ए जो है, ठीक है, वो बी से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इट फर्स्टली इट विल सेंड ए मैसेज टू प्रोसेस बी। ठीक, ठीक है, किसके थ्रू करेगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो देखो होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या है कि ये, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे आईपीसी है। ठीक, ये यहाँ पे आईपीसी, ठीक है, तो ये क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। और इससे, ठीक है, इससे क्या होता है, सारे के सारे, ठीक है, ये प्रोसेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4। ठीक, तो क्या होगा कि सारे के सारे एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि ईच प्रोसेस हैव इट्स ओन मेमोरी। तो अगर क्या है कि एक प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस अगर कम्युनिकेट करना चाहता है, ये हमारा P1 है, ठीक है, ये P1 है, ठीक है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4, ठीक है,
ये कुछ इस तरह से, ठीक। तो अब देखो क्या है कि ऑल प्रोसेस हैव इट्स ओन मेमोरी, ठीक है। अब P1 को कम्युनिकेट करना है P2 से, ठीक। तो हाउ इट विल कम्युनिकेट थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। फर्स्टली क्या होगा, वो अपने जो भी डाटा रिसीव करना है, डाटा सेंड करना है, तो क्या करेगा, जैसे डाटा सेंड करना है तो वो अपने मेमोरी में वो डाटा डाल देगा, आईपीसी के थ्रू P2 को मैसेज भेजेगा कि दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैसेज पासिंग। तो P1 क्या करेगा, इट विल सेंड ए मैसेज टू, हाँ, तो अब क्या होगा कि वही सही था, ठीक है। तो होगा क्या कि if P1 wants to communicate with P2, okay, so firstly it will if it want to send his data to P2, तो क्या करेगा, सबसे पहले P1 will store the data into its memory, अपनी मेमोरी में डाल देगा, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, इट विल सेंड ए मैसेज टू P2 वाया इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये ठीक है, भेजेगा। क्यों भेजेगा, इट विल चेक वेदर P2 is free or not, okay, if P2 is free, then it will gives an acknowledgement to P1 by IPC, ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू भेजेगा, ठीक। and then after whatever stored in memory of P1, it will send to P2's memory via इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो अब देखो क्या है कि इसमें मैसेज पासिंग हो गई है, ठीक, क्लियर है, क्या हो रहा है, इसमें मैसेज पासिंग हो रही है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैसेज पासिंग मॉडल। तो अब देखो क्या है, तो अब जो हमारा क्या है मैसेज पासिंग मॉडल है, इफ मल्टी प्रोसेस कैन रीड एंड राइट द टू द मैसेज क्यू विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर, मैसेज आर स्टोर्ड ऑन द क्यू until the recipient retrieves them. Message queues are quite useful for inter-process communication and used by most operating systems. तो अब देखो क्या है कि इस मैसेज पासिंग मॉड्यूल में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि P1 कैन कम्युनिकेट विद P4 as well as P1 can communicate with P2 as well as P4 and P3, P5 also. Okay, but in shared memory ये क्या होगा, ठीक है, 1-to-1 कम्युनिकेशन, ठीक। क्यों 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। तो P1 क्या है, पहले अपने इस मेमोरी में कोई भी चीज डालेगा और P2 को बताएगा, ठीक है, कि ये सारी चीजें हुई हैं, तो राइट अपडेट प्रोटोकॉल के थ्रू क्या होगा, ये इसको बताएगा, ठीक, क्लियर है। तो 1-to-1 होता है, ठीक है। अगर रीड है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है कि मल्टीपल रीड is possible, okay, but if there is a single write, then 1-to-1 communication, okay, clear है। तो ये थोड़ी सी शेयर्ड मेमोरी में डिसएडवांटेज है, लेकिन मैसेज पासिंग में क्या है, ए सिंगल प्रोसेस कैन कम्युनिकेट टू नंबर ऑफ प्रोसेस, क्लियर है। लेकिन क्या करना होगा, फर्स्टली इट हैव टू that send the information, or firstly it will message to the process which it wants to communicate. After getting the acknowledgement by the process, it now send or receive it, ठीक, क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड मैसेज पासिंग मॉडल, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जो इसमें लिखा हुआ, मल्टीपल प्रोसेस कैन रीड एंड राइट डाटा टू द मैसेज क्यू विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर। तो एक दूसरे से कनेक्ट P1 and P2 is not directly connected to each other. They are connected to via IPC. तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी में डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट सपोर्ट ट्रू पैरेललिज्म, ओके, ट्रू पैरेललिज्म एंड डिग्री ऑफ पैरेललिज्म इज वेरी लेस इन शेयर्ड मेमोरी,
but in message passing model the degree of parallelism is too much, is high. Okay, तो अब देखो क्या है, तो अब कैसे होता है ये चीजें। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमने आपको बताया कि आईपीसी फैसिलिटी प्रोवाइड्स टू ऑपरेशन, सेंड एंड रिसीव। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि सेंड किया जाएगा मैसेज, ठीक, उसके बाद क्या होगा, इट विल रिसीव द मैसेज, ठीक। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि एंड एक इसमें क्या होता है कि डेफिनेटली डिग्री ऑफ पैरेललिज्म टू मच हाई, but the things become complex. Okay, the things become complex, और क्या हो जाता है कि at all process are working independently, so a high level of synchronization is required. और क्या होता है कि देयर इज क्या होता है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर क्या है कि if there are less process, मतलब 4-5 प्रोसेस है तो it is not suggested that go for message passing model, but if there are thousands of processes, then message passing model have a great uh, effect. Okay, वैसे आपको नहीं दिखेगा, ठीक। तो mechanism for process for communicate and synchronize their action, message system process communicate with each other without restoring to shared variable. IPC facility provide send and message receive. The message size is either fixed or variable. तो मैसेज साइज डिपेंड करता है, इसके इसके पीछे क्या है, बहुत सारी चीजें लॉजिक है, ये तो बहुत छोटी सी चीज आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अ, एक तीसरी जो आजकल चल रही है, ठीक है, एंड इट इज कंटिन्यू इन रिसर्च, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो क्या होता है कि देयर इज सम एडवांटेज ऑफ शेयर्ड मेमोरी, देयर इज सम एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कह सकते हो या मैसेज पासिंग मॉडल। तो बोथ हैव some advantage and disadvantage. So is a new technology, there is a new model which is called distributed shared memory model. Okay, so in this 4 to 5 process have a common memory. If there are there are 32 process are there, so there are 8 process. There are 8 memory and 4 process sharing one memory. It means there are 32 प्रोसेस। ओके, तो क्या होगा कि 4-4 प्रोसेस ने एक एक मेमोरी शेयर कर ली, तो इसमें देखो क्या है, शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया, शेयर्ड मेमोरी मॉडल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, एंड देयर आर 8 डिफरेंट मेमोरीज, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया या मैसेज पासिंग मॉडल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, ठीक है। तो यूनिट 2 जो है तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट उससे हम पढ़ाएंगे यूनिट 3, ठीक है। और थोड़ा सा कोर्स तुम लोगों का पीछे चल रहा है, अटेंडेंस दे दो तुम लोग। थोड़ा सा कोर्स पीछे चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर थोड़ा सा मैं बढ़ाऊं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो यूनिट 3 है और उसके बाद यूनिट 4 है, ठीक है, यूनिट 5 जो है ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। तो जब भी पढ़ना बच्चों तो एक कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। कोशिश करूंगा कि मैं कॉलेज आ रहा हूँ तो ऑन मतलब लाइव थोड़ा सा वो ब्लैक बोर्ड का यूज करते हुए पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अटेंडेंस दे दो तुम लोग। यूनिट 2 इज कम्प्लीटेड, और ट्यूटोरियल हमने शायद एक ग्रुप में डिस्कस किया था, ठीक है। ट्यूटोरियल करते रहो, जो ना समझ में आए मुझे व्हाट्सअप कर लो या पर्सनली भी पूछ सकते हो। अटेंडेंस अगर सबने दे दिया हो तो मैं क्लास साफ कर लूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँगा। 4 मिनट बचे हैं, अगर इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विद मी। इफ समवन हैव प्रॉब्लम देन स्टे हियर, अदरवाइज यू कैन लीव।
If any student have any problem in unit 1 and unit 2, they can discuss with me. Otherwise, you can leave. कोई प्रॉब्लम नहीं है.